So today we are discussing once again Afghanistan, and especially our focus is on history of Afghanistan after 1979. History of Afghanistan after 1979. Now, why 1979? Because USSR attacked on Afghanistan in 1979. So from 1979, the complex and turbulent history of Afghanistan starts. Please make a comment. The year 1979 saw the Soviet Union invasion of Afghanistan, and the complex and turbulent history starts. Make a comment. The year 1979 saw the Soviet invasion of Afghanistan, and the complex and turbulent history of Afghanistan starts. So make this comment, please hurry up, so that I'm sure that you are available to me. The year 1979 saw the Soviet SOVIET, the Soviet invasion of Afghanistan. Thank you, Rahman, for your first comment. तो 1979 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट साल है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं. एंड द प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट्स इन अफगानिस्तान. द प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट्स इन अफगानिस्तान. Now, there was a decade-long war between the Soviet-backed government and the Mujahideen, or Afghan resistance fighters. The war ended in 1989 with the withdrawal of Soviet troops, but the country remained deeply divided. ये जो जंग था, जब सोवियत यूनियन ने हमला किया अफगानिस्तान पे, ये कब किया? 1979. जब कब ख़त्म हुई? 1989. So the war from 1979 to 1989. This is 1 decade war. Now a lot of refugees from Afghanistan to Pakistan, a lot of drugs, a lot of weapons. Afghans, they came to Pakistan in millions. They occupied the businesses in Pakistan. Kalashnikov culture started in Pakistan, and Pakistan started suffering because of Afghanistan. Pakistan supported Mujahideen. Mujahideen were also supported by USA and Arab countries, especially Saudi Arabia and also European Union, NATO. Why? Because it was a proxy war. They wanted to defeat USSR.
they wanted to make USSR weaker. And you see कि 1989 में 89 में वो अफ़गानिस्तान से निकलते हैं और 1991 में जो है 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो ख़त्म हो जाता है. द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म in 1991 after their defeat in Afghanistan. And that's why Francis Fukuyama wrote the famous book, The End of History. The End of History. Why? Because communism was finally defeated. But Huntington wrote The Clash of Civilizations. फ्रांसिस फुकुयामा ने किताब लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री कि भाई तारीख़ ख़त्म हो गया, डेमोक्रेसी, लिबरलिज़म, कैपिटलिज़म ये नंबर 1 हो गए, अब इससे बेहतर क्या ज़माना आएगा. सो दैट वाज एंड ऑफ द हिस्ट्री. हिस्ट्री ख़त्म. लेकिन हंटिंगटन ने एक और किताब लिखी उसके मुकाबले में, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि अभी जो है सिविलाइजेशंस की क्लैश शुरू हो गई. तो फिर ये अलकायदा और तालिबान और अरब स्प्रिंग और चाइना, तो वो अभी भी हिस्ट्री जारी है. ठीक है, कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, लेकिन मतलब जो तालिबान थे, अलकायदा था, जो टेररिस्ट ग्रुप थे, चाइना ने भी अपना असर जो है ना शुरू किया. So, in the years that followed, Afghanistan descended into a civil war between rival Mujahideen factions. The Taliban, a radical Islamic group, emerged as the dominant force in the late 1990s and imposed a strict interpretation of Sharia law on the country. The Taliban's rule was marked by human rights abuses and widespread poverty. अब 1999 तक 89 जो है 89, इसमें सोवियत यूनियन निकल जाता है. 99 के तक ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे. अगर आपको याद है या आपने कहीं पढ़ा है तो गुलबदीन हिकमतियार का हिज़्ब इस्लामी था और बुरहानुद्दीन रब्बानी का जमीयत इस्लामी था, और एक और था हरकतुल इस्लामी मोहम्मदी का. तो ये जब सोवियत यूनियन निकल गया, अमेरिका भी निकल गया, तो इन्होंने अपने आप के साथ जो है वो लड़ाई शुरू की. हिज़्ब इस्लामी का जो गुलबदीन हिकमतियार है उसको द बुचर ऑफ काबल कहा गया. इसने काबल पे कब्ज़ा किया. वह जो जमीयत का बुरहानुद्दीन रब्बानी था, फिर अहमद शाह मसूद था. अहमद शाह मसूद को बाद में मारा गया. तो ये सारी कहानी जो है ये 10 साल फिर ये कहानी चलती रही. काबा में जाके उन्होंने कसम भी उठाई, दस्तखत भी की, लेकिन पावर एक ऐसी चीज़ है कि फिर करबला जो है वो हो जाता है. कोई नहीं देखता कि नवासे पैगंबर है या ये कोई बड़ी मुक़द्दस हस्ती है. औरंगज़ेब भी जो है, आलमगीर जिसको हम इतना बड़ा बादशाह समझते हैं, उसने भी अपने 4 भाइयों को मारा और अपने सगे बाप को पंजरे में बंद किया. वो गरीब शाहजहान उधर ही मर गया. तो पावर जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है. ये तो शुक्र है कि डेमोक्रेसी ने लोगों को इलेक्शंस पे लगाया. ये इलेक्शन के थ्रू जो है पावर चेंज होना चाहिए. वरना जब अब्बासिया आ गए और उमैया से उन्होंने पावर ले ली, तो अब्बासियों ने उमैया के खलीफों के हड्डियाँ निकाली और इसको जलाया और कहा कि जी शाबाश, आज हमने बदला लिया. यजीद जो है, इसके बारे में मशहूर है कि ये फिर मक्का मदीना गया और वहाँ उसने ऐलान किया कि आज मैंने अपने दादा अबू सुफियान का बदला लिया, क्योंकि अबू सुफियान से भी ताकत जो है वो फ़तह मक्का के बाद चीनी गई थी. तो ये सारा जो है दिस इज़ पावर एंड दिस इज़ रियलिज़म. इन चीज़ों को हमने जज्बाती नज़र से नहीं देखना. इस चीज़ों को हमने एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भाई ये क्या चक्कर है. बाप अपने बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, भाई भाई को मारता है.
एक ही ख़ानदान है, एक ही लोग है, एक ही मुस्लिम है, एक ही क्रिश्चियन है, एक दूसरे को मार काटते हैं। वजह क्या है? पावर। तो सलाम जो है हम आज करते हैं मॉन्टेस्क्यू को और अरस्तू को, अफलातून को, हीगल को, नीत्शे को और इन लोगों को कि इन्होंने लोगों को समझाया भाईजान ये यार इलेक्शन करो, कोई वोटिंग करो, एक दूसरे को मत मारो। तो ये फिर हमारा जो है ना मॉडर्न ज़माने में बहुत बड़ा एहसान है, वरना हर बंदा खलीफा जब मरता था तो आने वाले में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। ये जो हमारा अपने इंडिया में देखो कि भाई जी ये ख़ानदान गुलामा है, स्लेव डायनेस्टी, तो उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तो उसके बाद ये तुगलक डायनेस्टी, तो उसके बाद सैयद डायनेस्टी, तो उसके बाद लोधी डायनेस्टी, तो उसके बाद बाबर आता है। बाबर जो है वो भी इब्राहिम लोधी को मारता है। फिर शेरशाह सूरी आते हैं, वो बाबर के बेटे हुमायूं को निकालता है। हुमायूं फिर आते हुए शेरशाह सूरी से ले लेता है। तो ये सारी कहानी जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए अफ़गानिस्तान के तनाजुर में भी। उसके बाद जो है तालिबान का पहला गवर्नमेंट आ गया। द तालिबान रजीम केम टू एन एंड इन 2001। अब तालिबान ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया कि यार ये मुजाहिदीन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आज हम इस पर कब्ज़ा करें। तो उन्होंने एक यूनिफाइड पावर बनाया और 2001 में फिर अमेरिका दोबारा आ गया, उसने तालिबान को टॉपल किया। इन 2001 the United States invaded Afghanistan in response to the September 11 attacks. The US-led invasion toppled the Taliban government and established a new government in Kabul. However, the Taliban insurgency continued and the country remained deeply unstable. तो तालिबान जो है अमेरिका ने उनको 2001 में हटाया और फिर ये करज़ई और अशरफ गनी और ये लोग चलते रहे और अभी 2 साल पहले जो है तालिबान दोबारा आ गए। तो करंट जो एरा है वो आप लोगों के सामने है। तो 1979 में सोवियत यूनियन ने हमला किया। 1988 में जिनेवा एकॉर्ड्स हो गए। मक्का में उनका कोई नहीं है, जिनेवा में उन्होंने सुलह किया। 1992 में नजीब को मारा गया। नजीब को जो है तालिबान ने लटका के फांसी दे दी चौक में। फिर 96 में जो है तालिबान सीजेस कंट्रोल ऑफ काबुल एंड एस्टेब्लिशेस द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। 96 में पहली दफ़ा आते हैं। 2001 जो है US लेड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान टॉपल्स द तालिबान गवर्नमेंट। 2004 में हामिद करज़ई जो है 2004 में ये आ जाता है। 2011 में जो है US फोर्सेस किल उसामा बिन लादेन। और फिर 2021 जो है US विड्रॉ इट्स ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द तालिबान रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री। 2021। So the history of Afghanistan after 1979 is a complex and tragic one. The country has experienced decades of war and instability, and its people have suffered greatly. It is hoped that the future will bring peace and stability to Afghanistan, but the challenges facing the country are daunting. 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 तो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स में जो है ये क्वेश्चन है कि भाई what is the impact of Afghanistan war on Pakistan, कि भाई इन तमाम कहानियों का पाकिस्तान पे क्या जो है वो इम्पैक्ट है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने आपको बताया कि भाई ड्रग्स आ गई, मुहाजिरीन आ गई, उन्होंने हमारे कारोबार पे कब्ज़ा किया, ठीक है। फिर क्लाशनकोफ आ गए, अभी भी कोई 2 मिलियन जो है 20 लाख के करीब लोग अभी भी मौजूद है अफ़गानिस्तान के। तो द अफगानिस्तान वार has had a significant impact on Pakistan, both economically and security wise. Here are some of the key impacts. Number 1 is security. The war in Afghanistan has created a safe haven for terrorist groups which has carried out attacks in Pakistan.
These attacks have killed and injured thousands of people and had damaged infrastructure and businesses. अब अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है उनकी गवर्नमेंट है, तो हमारे जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उन्होंने वहाँ वो लिया है पनाह। तो ये है, कहा जाता है कि वो जो है वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं। इकोनॉमी, द वार हैज़ आल्सो हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी. The diversion of resources to security has led to a decline in investment and economic growth. The war has also disrupted trade and tourism, which are important sources for income in Pakistan. हमारा टूरिज़म नहीं है, जंगे है, हर तरफ जंग है, तो हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ गया. Refugees. The war has led to a large influx of Afghan refugees into Pakistan. और फिर रीजनल इंस्टेबिलिटी. अब अफ़गानिस्तान में जंग है तो पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया नहीं जा सकता, और सेंट्रल एशिया वाले अफ़गानिस्तान से के थ्रू पाकिस्तान नहीं आ सकते. तो इस रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान जो है वो सफ़र हो रहा है. अगर अफ़गानिस्तान में सुकून होता, अमन होता, तो पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं करता. अब एक सर्वे हुआ है कि पाकिस्तान का जो सबसे दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, वो इंडिया से भी बड़ा दुश्मन जो है वो अफ़गानिस्तान है. तो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, दैट इज़ आल्सो अ लॉट ऑफ चैलेंजिंग. सो देयर इज़ इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन. द वार हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन मिलिटराइजेशन इन पाकिस्तान एज द गवर्नमेंट हैज़ sought to strengthen its security forces to combat the threat of terrorism. This has had a negative impact on human rights as the military has been accused of abuses. फिर ह्यूमन राइट्स का भी चक्कर है. हम समझते हैं कि कोई तालिबान है, कोई टेररिस्ट है, वो कहते हैं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, तो उसके ह्यूमन राइट्स का भी इशू बन जाता है. डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पुल, बिल्डिंग्स तबाह, मार्केट्स में धमाके, सोशल प्रॉब्लम्स. The war has led to social problems in Pakistan as people have been displaced from their homes and communities. This has led to increased poverty, unemployment and crime. The Afghanistan war is a major challenge for Pakistan. It is important for the government to find ways to mitigate the negative impacts of the war and to promote peace and stability in the region. तो ये हमारा जो है अफ़गानिस्तान की वजह से, हमने अफ़गानिस्तान पे बायलैटरल रिलेशन में भी लेक्चर दिया था, और ये जो है लेक्चर जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो जो प्रॉक्सी वार थी और अफ़गानिस्तान का जो वार है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है. अब प्रॉक्सी वार क्या चीज़ है? प्रॉक्सी आपको याद होगा कि भाई क्लास में हम लोग प्रॉक्सी लगाते थे, लोग लगाते थे. बंदा खुद नहीं आता था, टीचर कहता है नईम खान, तो उधर से मेरा दोस्त कहता है यस सर, ओके, तो नईम खान की हाज़िरी लगती थी. तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं प्रॉक्सी. इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सी. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉक्सी वार? मैंने आपको नोट्स दिए हैं, इसमें सारी चीज़ें जो है वो आपके पास मौजूद है कि भाई प्रॉक्सी वार जो है, द वार विच इज़ नॉट कॉन्टेस्टेड बाय द राइवल पार्टीज ऑन देयर ओन लैंड्स बट इट इज़ कॉन्टेस्टेड एल्सवेयर. अब अमेरिका रूस का जंग है तो वो एक दूसरे पे हमले नहीं करते कि अमेरिका रूस पे हमला करे या रूस अमेरिका पे हमला करे. वो अफ़गानिस्तान में अपना जंग करते हैं. ईरान और सऊदी का गड़बड़ है तो वो एक दूसरे पे हमला नहीं करते, वो पाकिस्तान में शिया सुन्नी के फसादात बनाते हैं. सो अ प्रॉक्सी वार इज़ एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, वन और बोथ ऑफ विच एक्ट एट द इंस्टिगेशन और ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द हॉस्टिलिटीज़. जो हॉस्टिलिटी है, जो जंग है, उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता. In order to a conflict to be considered a proxy war, there must be a direct, long-term relationship between external actors and the belligerents involved.
जो बेलिजरेंट्स है, जो जंगजू है, बेलिजरेंट जंगजू, जो जो जंग करते हैं, तो उनका दूसरे के साथ बड़ा पक्का ताल्लुक होता है। ठीक है, अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट थे, उनका ताल्लुक सोवियत यूनियन के साथ था, और हमारे जो मुजाहिदीन थे इनका ताल्लुक पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ था। तो ये उनके लिए कराए के गुरेले थे, कराए के लड़ाई कर रहे थे। The relationship usually takes the form of funding, military training, arms, or other forms of material assistance which assist a belligerent party in sustaining its effort. अमेरिका क्या कहते हैं जी, मैं आपको असलहा बेचता हूँ, मैं आपको जो सामान बेचता हूँ, मैं आपको जहाज बेचता हूँ, आप लड़े मेरे लिए. So that is proxy war. So I have given you a lot of examples of the proxy war. The Korean War 1950-53, Vietnam War 54-75, Angolan Civil War 75-2002, Syrian Civil War, Afghanistan War. So all these are proxy wars. So I hope you got the basic message. तो अफ़गानिस्तान को आपने ख़ुद भी पढ़ना है कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्या है ये भी आपने पढ़ना है, और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका पाकिस्तान पे क्या असर है ये भी आपने पढ़ना है। और फिर वार के जो टाइप्स है वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपने पढ़ना है। Was Al-Qaeda part of Mujahideen or it was a separate organization? Technically, Al-Qaeda was not part of Mujahideen, and it was a separate organization. However, they shared similar approach to use violence for religious purposes, to use jihad for their motives, and to use kind of terrorism for their own benefits. So technically they were separate. Mujahideen never recognized that we are attached with Al-Qaeda, or Al-Qaeda never said that we are part of Mujahideen. But Al-Qaeda was the product of such things. When Mujahideen got success in Afghanistan, so Al-Qaeda was also encouraged. As today, Taliban, people give the success stories of Taliban in Afghanistan, so many areas in Pakistan, they also get inspiration from their success stories, and they also want to have Taliban kind of government in Pakistan. So that is an ideological relationship, not technical organizational relationship. Maybe they are supporting each other in a clandestine way. Clandestine. Clandestine means that hidden way, concealed way. हो सकता है चुप चुप के एक दूसरे के साथ मदद भी करे, लेकिन वो ओपन कोई रिलेशनशिप जो है उनका नहीं है। Collapse of Berlin Wall in 1991 was the same story, because East Germany and West Germany, East Germany was communist and West Germany was democratic and capitalist, liberal democracy. तो जो मगरिब था, मगरबी जर्मनी, वो अमेरिका के साथ था, जो मशरिक़ था वो सोवियत यूनियन के साथ था। तो अब ये कहानी है कि जब सोवियत यूनियन जो है वो ख़त्म हो गया 91 में, तो उन्होंने बर्लिन में एक दीवार बनाई थी कि इसकी इस तरफ कम्युनिज़म है और उसके दूसरे साइड पे कैपिटलिज़म है। तो जब कम्युनिज़म ख़त्म हो गया तो वो दीवार जो है वो गिर गई और जर्मनी जो है वो दोनों मिल गए। ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी जो है वो एक जर्मनी बन गया। अब यही वॉल जो है ये अभी भी मौजूद है, कहाँ? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में। ये दोनों एक कोरिया था, लेकिन कम्युनिज़म जो है वो नॉर्थ में आ गया, साउथ में कैपिटलिज़म है और अभी तक नॉर्थ में कम्युनिज़म है। तो जो कोरिया वाला वॉल है, जो दीवार है, वो अभी तक नहीं गिर सकी, लेकिन जर्मनी वाला गिर गई 1991 में। Please put a glance on future of Afghanistan.
Now, the future of Afghanistan has uh, if Taliban are recognized as responsible international players, so there will be no hostility in Afghanistan, there will be stability in Afghanistan, and that is for the benefit of Pakistan. A stable Afghanistan is always in the benefit of Pakistan. But if there are activities of TTP in Afghanistan against Pakistan, so Pakistan may take drastic steps. For example, recently in Job and Baluchistan there were attacks, Palachinar there were attacks, and Defense Minister of Pakistan and the armed forces of Pakistan, they are very much angry. According to these sources, the attacks inside Pakistan were planned in Afghanistan. So situation is not promising, situation is not hopeful. If the government of Taliban is not recognized by international community and Taliban continue policies which are against Pakistan, which are against the West, against United States, so maybe once again we see the war in Afghanistan. Very complicated. If Al Qaeda was a supporter of Mujahideen, then why they become the alliance of Taliban after their emergence? I never said that Al Qaeda was the supporter of Mujahideen. I never claimed that. I don't know the exact date that when Al Qaeda started. Let's see in Google what Google tells us. History of Al Qaeda. Al Qaeda जो है शुरू कब हुआ? Al Qaeda was closer to Taliban, not that much to Mujahideen, because I don't think that Al Qaeda was existing at that time. Al Qaeda is a Sunni Islamist militant organization founded in the late 1980s. So it was founded in around 1989. So that was the beginning of Taliban and the end of Mujahideen by Osama bin Laden. The group's stated goal is to establish a pan-Islamic caliphate ruled by Sharia law. अब अल-कायदा जो है वो पूरी दुनिया के लिए उनका विजन है. तालिबान और मुजाहिदीन का जो विजन था वो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए था. Al-Qaeda has been responsible for numerous terrorist attacks, including the September 11 attacks in the United States, the 2004 Madrid train bombings, and the 2005 London bombings. Al-Qaeda was founded in 1988 by Osama bin Laden, Abdullah Azam, and several other veterans of the Soviet-Afghan War. तो जब अफ़गान वार ख़त्म हो गई तो उसके बाद अल-कायदा बनी, तो इनका मुजाहिदीन के साथ इतना वो नहीं बनता. तालिबान ने उसामा बिन लादेन को, जो फर्स्ट उनकी गवर्नमेंट थी, तो उसामा बिन लादेन को अफ़गानिस्तान में रखा और वो बहाना मिल गया यूएसए को, तो उन्होंने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे, और तालिबान की जो पहली गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई. और उसामा बिन लादेन जो है सपोजली, अब पता नहीं कितना सच्चा है कितना झूठा है, तो फिर उसको एबटाबाद में मारा गया पाकिस्तान में. तो ये कहानी जो है वो डिफरेंट है दोनों की. तालिबान के साथ उनका ज़्यादा, क्यों तालिबान जब डेवलप हो रही थी तो साथ साथ अल-कायदा भी डेवलप हो रही थी. मुजाहिदीन के वक्त जो है तालिबान नहीं था, अल-कायदा नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, और मुजाहिदीन को अल-कायदा की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अल-कायदा को ऑलरेडी पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी. तो वो उनको अल-कायदा का सपोर्ट लेने में क्या ज़रूरत थी उनको. तो ये कड़ियाँ जो है ना आप लोगों ने मिलाने हैं, फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट गाइस. दिस वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, पाकिस्तान अफेयर्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इम्पैक्ट, war, terrorism, and proxy wars. So please read the notes, study the notes. That is highly important. All the best. Take care. Good night.